Children, come to your class. Are you all ready with your book? Now, we had done lesson number 6, the noun number, in the last class. I had explained you the lesson. And I gave you some rules also to write in your fair copy. I hope you all have written and learn it. तुमने सबने लिख लिए होंगे और लर्न भी किए होंगे. Yes? Okay. Now, today I am going to explain you exercise A. आज अपन एक्सरसाइज A करेंगे. ये एक्सरसाइज भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाल दी है ना. अब आप मेरे को बताएंगे कि आप सब लोगों ने कर ली क्या एक्सरसाइज A एंड B. Have you all done exercise A and B in your book and in your fair copy? Those who are not having the book have to do these exercises in your fair copy I told you to do. Have you all done it? Chalo, very good. You have done it, that means good. Now, once again we'll repeat the exercises. Balloon. Who will give me the answer? Balloon. Yes, balloons. That means you have done the work. Nice. Yes, Maitri, Nirja. Good. Now, children, egg, egg, egg. Yes. Okay. Now that means you have done it. I was just testing you whether you have done or no. We'll start with exercise C then. C में write the singular of each of the following words. आपको ये जो words दे रखे हैं plurals में दे रखे हैं, आपको इनको singular में लिखना है. इनके सिंगुलर फॉर्म्स लिखने हैं. प्लूरल फॉर्म में दे रखे हैं तो आपको इनको सिंगुलर फॉर्म में लिखने हैं. ऑक्सन. ऑक्सन का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? व्हाट विल बी द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सन? बताइए, ऑक्सन का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? यस, गुड. कृतिका, निर्जा, मैत्री, अविका, ox. Good answer, right answer. You have given the right answer. Second is bison. Bison. What will be the answer of bison? Yes, it will be the same word. Maitri and Kritika, Avika, yes, right answer. Third is logos. Logos. Yes. Yes. Right answer, Maitri, Kritika, Avika, Hemandar. Only logo. Yes, right. Now, fourth, ghettos. ES will be removed from it. Cargos.
cargoes. Fifth is cargoes. What will be the answer? Yes, cargo. Right answer. Today you are all giving the right answers. That means you have done the exercise by yourself. It means that you have done the exercise by yourself. Good. You have tried your best to do the exercise. Now, sixth is leaves. Leaves. Sixth is leaves. What will be the singular of leaves? Yes, good. Leaf. Yes. Right answer. Now, 7 is lives. 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 Yes. Neza, Avika, Kritika, Maitri, Nirza. Yes. Life. Life. Right answer. Now. Echoes. Echoes. इसके अंदर इको आएगा. ECHO. halls, hall, halves, halves, ऐसा जाएगा, ऐसा कि ऐसा ही आएगा. 11th में spices, spy, SPY आएगा, IES हट जाएगा, Y लगा देंगे क्योंकि जब हम Y हटाते हैं तो उसके आगे अपन IES लगाते हैं. तो इसमें spices है तो अपन इसका जब सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो SPY लगाएंगे. IES को हटा देंगे और उसकी जगह Y लगाएंगे. ऐसे नंबर 12 में देखो wives, WIVES, wives. तो VES जब हम लगाते हैं, जब हम FE को हटाते हैं तो आप वाइफ कैसे लिखोगे? यस, गुड आंसर, करेक्ट आंसर. नाउ नंबर 13, जर्सीज. जर्सीज. जर्सी में आपको सिर्फ एस हटाना है और कुछ नहीं करना है क्योंकि वाई बाद में है, एस पहले है, इसलिए. 14 में है रेज. रेज. रेज में सिंगुलर फॉर्म बनाइए. इसमें भी आपको क्या करना है? कैसे लिखोगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ रेज? यस, राइट आंसर. स्टोरीज. स्टोरीज होती हैं. स्टोरीज को कैसे लिखोगे? ये STOREYS स्टोरीज है. 1 2 3 4 5 6 स्टोरी. अब यहाँ एक बच्चा पूछ रहा है, आई फॉरगॉट द नेम. जर्सी. जर्सी पहनने की जर्सी. इसमें से स्टोरीज में से वाई निकल जाता है.
एस निकल जाता है, वाई तक ही स्पेलिंग रहेगी सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि ये कहानी वाली स्टोरीज नहीं है, ये 1 2 3 मंजिल वाली है स्टोरीज। नाउ डोंकीज, डोंकीज का सिंगुलर क्या बनाओगे आप? डोंकी का सिंगुलर ठीक है, राइट है, यू आर गिविंग द राइट आंसर्स। नाउ 17 giraffes, giraffes, जिराफ्स का राइट आंसर क्या होगा ना? जिराफ्स का एस हटाना है, ई तक ही आपको रखना है। एटीन में है मॉस्किटोज, सिंगुलर बनाना है मॉस्किटोज का। मॉस्किटोज का सिंगुलर बनाना है, कैसे बनाएंगे? यस, यस, करेक्ट आंसर्स। रितिमा, निर्जा, कृतिका, मैत्री, योर आंसर इज राइट। Now, loops, loops. What will be the singular of loops? VS आ गया, जब VS आता है तो हम क्या करते हैं? क्या करोगे आप? यस, यस, कृतिका, रितिमा, मैत्री, अविका, राइट आंसर है। योर आंसर इज राइट। प्रूफ, proofs. Tell me the answer. Proofs. Yes. Right answer. Kritika, Ritima, Avika, Maitri, you are giving the right answer. Now, that means you have done this exercise and you have understood. Have you all understood this exercise? Today I will give you in the homework to do it. मैं आज आपको होमवर्क में दूंगी ये एक्सरसाइज करने के लिए। अब आ जाओ एक्सरसाइज डी पे। ये कहते हैं कि the following sentences have some nouns given in color. State whether they are singular or plural nouns. आपको इन सेंटेंस दे रखे हैं, इन सेंटेंसों में कलर्स के अंदर नाउन दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ये नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। फर्स्ट वाला आपको करके उसने बताया है, जैसे कि काउस गिव अस मिल्क, गायें हमें दूध देती हैं। काउ के आगे एस लगा हुआ है, काउ के आगे क्या लगा है? एस। जब एस लगा हुआ होता है तो एक से ज्यादा काउ होती है, दैट मीन्स इट इज प्लूरल। क्या हो गया? दैट मीन्स इट इज प्लूरल। एक से ज्यादा हो गई तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गई। यस। नाउ सेकेंड, the thief ran away.
द थीफ, थीफ रेड में लिखा हुआ है, तो अपन को ये बताना है कि कौन सा वर्ड है, सिंगुलर इसमें है या प्लूरल है। थीफ सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बताओ। थीफ सिंगुलर है या प्लूरल है? थीफ सिंगुलर है, THIEF, थीफ सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो THIVES होता, थीव्स, है ना। तो ये सिंगुलर है। थर्ड में मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। अब मंकीज आ गया, मंकीज, मंकीज के आगे एस लग गया, तो क्या है ये? मंकीज क्या हो गया, बताइए। यस, करेक्ट आंसर्स रितिमा, अविका, मैत्री, रिजुअल, निर्जा, राइट आंसर, गुड। नाउ फोर्थ में देखो, आप साथ साथ लिख रहे हो तो मैं वेट करूं आपके लिए। फोर्थ में है द कलर ऑफ दिस लीव्स इज ग्रीन। ये लीव्स का कलर ग्रीन है। लीव्स, लीव्स इज सिंगुलर और प्लूरल? लीव सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या है लीव्स? इज इट ए सिंगुलर और प्लूरल? Yes, correct answers. It is plural. Now, 5. What kind of fruit is the apple? Fruit. What kind of fruit is the apple? एप्पल का नाम दिया है और फ्रूट दिया है अपन को, तो फ्रूट सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होता है। तो यहाँ अपन को, क्योंकि एप्पल का नाम, एक ही एप्पल स्पेशल नेम दिया गया है, तो हम इसको सिंगुलर लिखेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? और वैसे फ्रूट सिंगुलर भी है और फ्रूट प्लूरल भी है, मगर क्योंकि हमें एप्पल दिया गया है, नाम स्पेशली नेम दिया गया है, तो हम इसको सिंगुलर लिखेंगे। जिनको लिखना है लिख लो। 6th में है अमित टुक अवे माय अम्ब्रेला। अमित मेरा अम्ब्रेला ले गया। अम्ब्रेला सिंगुलर है या प्लूरल? अम्ब्रेला सिंगुलर है या प्लूरल? यस, अम्ब्रेला इज सिंगुलर। Now turn the page, those who are having the book, जिनके पास बुक है अपना पेज टर्न कर लो। Turn the page. Number 7. I played the piano. मैंने पियानो खेला यानी चलाया। पियानो सिंगुलर है या प्लूरल? Is it singular or plural? Yes, piano is singular. पियानो सिंगुलर है। 8. You may take this books home. तुम ये बुक्स घर ले जा सकते हो। इज सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर है या प्लूरल बुक्स?
बुक्स के आगे एस लगा हुआ है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? Yes, it is plural. Good. Those who are giving the answer, very good. Let's now 9. Let's go to the beach. चलो अपन बीच जाते हैं, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जहाँ खूब सारी रेत इकट्ठी होती है, वहां बैठ के खेलते कूदते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसको बीच बोलते हैं। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? Is it singular or plural? Come on, tell me. Yes, it is singular. Good. Yes, children, it means you have understood the lesson. Children, you are giving the right answer. Very good. Now, number 10. Children like colorful balloons. बच्चों को कलरफुल बैलून्स अच्छे लगते हैं। Is it plural or singular? बैलून्स, बैलून सिंगुलर हो गए या प्लूरल्स हो गए? Yes, it is plural. Good. You are giving the right answer, children. Now, children, look to exercise E. Word games. ये word games हैं, इसमें ये कहा गया है fit the plurals of the following nouns into puzzles. ये आपको puzzles दे रखे हैं, इसमें plurals लिखने हैं, ये आपको दे रखे हैं singular, इनके plurals आपको बना के लिखने हैं। Write the word across. One word has been done as an example. अब ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे फ्लेमिंगो पहले है तो वो ही लिखो, है ना। आपको ये जो कॉलम बने हैं, उस कॉलम में जो वर्ड पहले आता है उसका अपोजिट लिखना है। ये नहीं है कि आप वो लिखें जो पहले है। जैसे आपके कॉलम के अंदर कौन सा वर्ड आ रहा है पहले, इसने देखो, वैसे अब नंबर जो स्ट्रिप दे रखी है उसमें पहला वर्ड है फ्लेमिंगो, सेकंड वर्ड है एमएन मैन, है ना। तो एमएन मैन में इसने फर्स्ट कॉलम में 3 ही स्पेस हैं, तो इसने MEN मैन दे रखा है। क्या दे रखा है? MEN मैन दे रखा है। ऐसे इसने फिर नीचे 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स के अंदर आपको ये देखना है कि 4 कॉलम्स का प्लूरल कौन सा है। जैसे माउस, माउस का प्लूरल फॉर्म क्या है, जरा मुझे बताओ। टेल मी द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस। यस, द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस इज माइस। तो माइस के अंदर 4 वर्ड्स आते हैं, तो आप MICE लिख लेना इस कॉलम के अंदर। क्या लिख लोगे? MICE, माइस। सेकंड कॉलम में MICE, माइस लिख लेना। इस तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। हैव यू अंडरस्टूड? कॉलम देख के वर्ड्स लिखने हैं, और बड़े बड़े वर्ड्स तो एक के बाद एक, जैसे पहले छोटे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, एक पहले 3 कॉलम, फिर 4 कॉलम, फिर 5 कॉलम, फिर 6-7 कॉलम, फिर ऐसे कॉलम वाइज आपको वर्ड्सों को लिखना है। आ गया समझ में? हैव यू अंडरस्टूड इट? यस चिल्ड्रन। ये एक्सरसाइज कैसे करनी है सबको आ गया समझ में? Now children,
बहुतों ने कर लिया, वेरी गुड। आपने कर लिया तो मुझे मालूम है क्लास में भी आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता था इस गेम्स को करने में और फटाफट करना शुरू कर देते थे। यस, वेरी नाइस, दोज हु हैव डन इट, वेरी गुड एंड वेरी नाइस। नाउ चिल्ड्रन, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्रॉम tomorrow we'll not have the classes, है ना? But don't think that there is a holiday and summer vacation for you. You have to keep on learning your work. आपको अपना वर्क, अपनी पढ़ाई चालू रखनी है। अपन ने ग्रामर में लेसन 1 से लेके लेसन ये 6 तक पूरा कर लिया है, कर लिया है ना? तो आप ये पूरा लेसन लर्न करेंगे, पूरा लेसन को अच्छी तरह से लेसन 1 से लेसन 6 तक पूरा अच्छी तरह से लर्न करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड और नो? जिन लोगों ने बुक में करा है वो बुक में से लर्न कर लेना, जिन लोगों ने कॉपी में किया है वो कॉपी में से लर्न कर लेना। ये तो हो गई ग्रामर की बात। अब आया इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर में अपन ने लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 8 तक पूरा वर्क किया हुआ है। उसमें तुम्हारे मीनिंग्स हैं और हार्ड वर्ड्स हैं और एक्सरसाइजेस हैं, अपोजिट्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू और फॉल्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको फेयर कॉपी में भी लिखवाई है और जिनको पास बुक थी मैंने कहा था आप बुक में भी लिख लेना। तो ये सारा वर्क आपको लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 8 तक पूरा लर्न करना है। अब लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 8 में जो भी पोयम आई हैं, चाहे वो एक पोयम आई है चाहे दो, कम से कम 2 या 3 पोयम तो आई हैं। तो अगर छोटी पोयम है तो 2 पैराग्राफ लर्न करने हैं, यानी 8 to 10 लाइंस आपको हर पोयम की लर्न करनी है। अगर बड़ी पोयम है तो 1 पैराग्राफ लर्न करोगे, फिर दूसरा पैराग्राफ लर्न करना। 10 लाइंस या 8 लाइंस, 2 पैराग्राफ लर्न करोगे, चाहे उसमें 8 लाइंस हैं तो वो लर्न कर लेना, चाहे उसमें 10 लाइंस है तो वो लर्न कर लेना। हैव यू अंडरस्टूड? ये तो आपका होमवर्क रहा। उसके अलावा आपको बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स हैं, वो आप क्लास में स्कूल भी लगता था जब भी लर्न नहीं करते थे, मैम बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा है मैम, छोटे मीनिंग्स लर्न करने दो, तो मैं आपको छोटे मीनिंग्स लर्न करवाती थी। तो वो फिर आप छोटे मीनिंग्स लर्न कर लेना, बड़े बड़े मीनिंग्स मत लर्न करना। मगर हार्ड वर्ड्स सारे आपको लर्न करने हैं, क्योंकि हार्ड वर्ड्स आपको आगे भी काम में आएंगे, है ना? और डेली एक रफ कॉपी बना लेना, उसमें डेली आपका 1 पेज राइटिंग का करना, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अभी बुक्स नहीं लिए तो कर्सिव राइटिंग बुक आपके पास है नहीं। अपनी रफ कॉपी में इंग्लिश रीडर का 1 पैराग्राफ रोज लिखना। दूसरा बच्चों, आप स्कूल में आते थे तब आपकी रीडिंग होती थी, अब आप घर पे हो तो जो भी आपको पढ़ाते हैं उनसे कहना आपको 1 पेज रीडिंग डेली करनी है। आपको मम्मी पापा के पास या जो भी आपको पढ़ाता है उसके पास बैठ के 1 पेज रीडिंग डेली करनी है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब जब अपनी क्लास फिर से स्टार्ट होएगी तब मिलेंगे, जब तक गुड बाय एंड कंटिन्यू योर स्टडीज।